So dear students, in the chapter mining, you are studying about the energy resources. And energy resources are classified into two types, conventional and non-conventional sources of energy. Conventional sources Conventional sources of energy are those. Are you listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Once again, conventional sources are those sources of energy which are used traditionally. Like, what are the examples? Tell me. Traditionally हम कौन कौन Ma'am, से coal, petroleum, natural gas, electricity, हाँ etc. हाँ तो इसमें हम चार एग्जाम्पल दे सकते हैं कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस और हाइडल पावर these are the four examples of conventional sources of energy and in non-conventional sources of energy mainly the renewable sources of energy come an example of solar energy Wind energy, tidal energy, geothermal energy, biogas. very good biogas and one more example is of nuclear energy which is the exception in this group why because it is not renewable once a nuclear mineral is used it is used forever it comes to an end so it is not renewable but as it is newly developed so it comes under non-conventional sources of energy which one the nuclear energy also come under non-conventional sources of energy. Now today we are going to study in detail about the coal fields of India. In India, coal is the most important energy resource. Coal is most abundantly available fossil fuel. Abundantly means it is available in many areas like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, West Bengal, all these states are having coal deposits and we have large coal deposits. So in India, coal is abundantly found. So it is used as the main source of energy. It is used for power generation to supply energy to industries as well as for domestic needs. People used to cook food on this energy previously on coal. Even in hotels and many other places, coal is used for cooking food. So it is a main source of power and it is also used for domestic purpose sometimes. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirement. So for the commercial energy requirement means in the places where a lot of energy is required like industries, big institutes, hospitals, business centers, etc., where a lot of energy is required, it is fulfilled by the energy of the coal and it is known as thermal power. The energy produced from coal is known as thermal power. Okay? As you all are already aware that coal is formed due to compression of plant material over millions of years. You already know about the formation of coal. What had happened in the past? That big forest areas were just went inside the ground due to many reasons. You can say earthquake or many other reasons also. The forests were buried inside the ground and due to internal heat and due to pressure of the upper layers, it converted or transformed into coal. It took millions of years in its formation. It is not a very rapid process. Any mineral formation takes millions of years in its formation. Who is Rakesh Kumar? Of which class? Then, as coal therefore is found in variety of forms depending on the degrees of compression and depth. Degrees of compression, है ना, मतलब कितना ज्यादा वो प्रेशर में रहा है, वो कोल का लेयर कितना ज्यादा प्रेशर में रहा है वो और कितने लंबे समय तक वो
बरीड रहा है ग्राउंड के अंदर, इन सब बातों पे कोल का टाइप डिपेंड करता है, टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल डिपेंड करता है। जितने लंबे समय तक कोल अंदर ग्राउंड के अंदर बरीड रहा है और जितना उसके ऊपर प्रेशर और जितना ऊपर हीट उसको मिला है, तो जितने पुराना कोल होगा उतना ज्यादा वो अच्छे क्वालिटी का होगा, उतना अच्छा उसमें कार्बन कंटेंट होगा। जैसे यहाँ देखो एक नाम दिया हुआ है एंथ्रासाइट वैरायटी ऑफ कोल, है ना। एंथ्रासाइट वैरायटी ऑफ कोल इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। हाउ इट हैज बिकम बेस्ट? because it has been buried for millions of years inside the ground, and it was under pressure of the upper layers, and it was also in the influence of the internal heat of the earth. That's why it has become the best quality coal, which is known as anthracite coal. Anthracite coal means the carbon content is more than 80%. 80 to 95% carbon content is known as the anthracite variety of coal. क्या हाँ, क्या बोलो। होमवर्क क्या बोल रही हो? सुनते चलो पहले। देख लो। नहीं करना है वो तो सब साफ हो गया। हाँ, stop talking, boys. टाइम बता ये खोल रहा था। चुप रहो। सत्यम सिंह, stop. एकदम झूठ। अब आगे देखो, हम लोग कोल के टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। पहले से जानते हो तुम लोग ये कोल के वैरायटी के नाम, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, है ना। इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर कॉपी में। ये कितने वैरायटी हैं? नंबर 1 एंथ्रासाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिग्नाइट, और लास्ट में क्या लिखेंगे? पीट, PEAT, पीट वैरायटी ऑफ कोल। तो ये सब किस बात पे डिपेंड करता है? ये चारों क्लासिफिकेशन जो है वो किस बात पे डिपेंड करते हैं? अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट। हाँ, कार्बन कंटेंट। और कार्बन कंटेंट कैसे डिफर करता है? क्योंकि वो कितने लंबे समय तक लैंड के अंदर बरीड रहा है, कितने समय तक वो अपर प्रेशर और इंटरनल हीट ये सबको बियर किया है, तो उस पर डिपेंड करता है कोल का वैरायटी। अब जो रिसेंटली फॉर्म्ड कोल है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वो सबसे लोअर क्वालिटी का कोल होता है, उसे कहते हैं पीट, है ना। और इंडिया में कौन सा वैरायटी सबसे ज्यादा मिलता है? ये एंथ्रासाइट के बाद वाला बिटुमिनस वैरायटी कोल। इंडिया इज वेरी रिच इन बिटुमिनस वैरायटी ऑफ कोल, राइट। याद रहेगा, एंथ्रासाइट कोल इंडिया में बहुत कम ही जगह मिलते हैं। जैसे थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, थोड़ा महाराष्ट्र में भी इसका एक छोटा बेल्ट है, और लेकिन ये जो बिटुमिनस कोल है वो इंडिया के बहुत बड़े रीजन में अवेलेबल है। पूरा झारखंड का सदर्न पार्ट देखो, वेस्ट बंगाल में भी है, उसके झारखंड और वेस्ट बंगाल का एडजॉइनिंग एरिया जो हो गया उसमें है, फिर उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है ये, और गोदावरी वैली जो है वो कौन से स्टेट में पड़ेगा बोलो? आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी है। तो कई सारे रिवर वैली में ये बिटुमिनस कोल का डिपॉजिट है, और इसी कोल को और क्या नाम दिया गया है? मेटलर्जिकल कोल इसको कहते हैं। विच कोल इज नोन एज मेटलर्जिकल कोल? बिटुमिनस। हाँ, बिटुमिनस कोल इज नोन एज मेटलर्जिकल कोल बिकॉज इट इज यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है ना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, जिसमें रॉ मटेरियल को आयरन ओर को जिसमें स्मेल्टिंग किया जाता है, तो उसके लिए जिस कोल का इस्तेमाल करते हैं वो ये है बिटुमिनस। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री है ना, उसमें देखो आयरन ओर के साथ साथ कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री इंडिया के जितने भी है उसमें यही कोल इस्तेमाल होता है। ये कोल है बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल में कार्बन कंटेंट होता है करीब मोर देन 60%, 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है बिटुमिनस कोल का। इसका कितना होता है एंथ्रासाइट का बोलो? 90%। हाँ, 80% एंड अबव, 80 to 95 कह सकते हैं। और एक थर्ड वैरायटी का कोल है जो है लिग्नाइट कोल। तो लिग्नाइट इज लो ग्रेड ब्राउन कोल, इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं, लिग्नाइट, विच इज सॉफ्ट with high moisture content.
लिग्नाइट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवेली इन तमिलनाडु एंड आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तमिलनाडु में नेवेली डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर ये बहुत ही बड़ा इसका माइन है लिग्नाइट कोल का। ठीक है, लिग्नाइट कोल के बहुत बड़े बड़े माइंस हैं नेवेली में, और इसीलिए नेवेली के आसपास ना बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गए हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है नेवेली के पास। तो इसका कारण बस यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कोल इन नेवेली डिस्ट्रिक्ट। तो इंडस्ट्री चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो ये नेवेली के लिग्नाइट कोल से मिलता है। इसलिए तमिलनाडु का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना, वो नेवेली डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही है। और एक लास्ट वैरायटी जो हो गया उसको पीट कहते हैं। देखो यहाँ पीट लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये बोल्ड लेटर में नहीं है। तो therefore coal therefore is found in variety of forms depending on the degree of compression and the depth and time of burial। देखो तीन पॉइंट है यहाँ पे। डिग्री ऑफ कंप्रेशन मतलब उसके ऊपर कितना कंप्रेशन है, दबाव है, और डेप्थ कितनी गहराई में वो है, और कितने टाइम तक वो अंदर स्टोर्ड रहा है क्रस्ट के अंदर। तो इन सारी बातों पे डिपेंड करता है कि कोल किस क्वालिटी का फॉर्म करेगा। और डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स मतलब कम ही गहराई में जो प्लांट डिके होते रहते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, पीट बनता है। तो पीट सबसे लोअर वैरायटी का कोल हुआ, समझ गए। लो वैरायटी कोल इज नोन एज पीट। इसमें बहुत ज्यादा स्मोक भी होगा और हीट भी कम जनरेट होगा। विच हैज अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर। लो कार्बन का मतलब हो गया लेस देन 40% कार्बन। तो यहाँ पे ना तुम लोग को हम थोड़ा कुछ ये दिखा दें कि कैसे माइनिंग होती है, क्वेरिंग क्या होता है, माइनिंग क्या होता है, ये जरा देखो तुम लोग। इस तरह से जो माइनिंग करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, क्वेरिंग। आर यू एबल टू सी दिस? मैम बुक का पेज ही डिस्प्ले हो रहा है। बुक का पेज ही दिख रहा है, अच्छा। यस मैम। हाँ, वो बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था ना, तो फिर से शेयर करना पड़ेगा। अब दिख रहा है? Are you seeing? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये ना इस तरह से जो ओपन माइनिंग होता है ना, जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, एक्सकैवेशन का काम ऊपर ऊपर हो रहा है, तो इसको कहते हैं क्वेरिंग। दो वर्ड तुम देखे होगे कि माइनिंग है, क्वेरिंग। तो ये स्टोन का भी इस तरह से माइनिंग होता है, या फिर कोल का भी माइनिंग इस तरह से होता है, जिसको क्वेरिंग कहते हैं। क्वेरिंग क्या है, स्पेलिंग बोलो। QUARRYING। हाँ, क्वेरिंग। तो ये क्वेरिंग हो गया। और ऐसे ही तुम्हें हम दूसरा भी थोड़ा दिखा दें, एक दो पिक्चर और। कोल माइंस ना दोनों तरह के हैं। कोल माइंस में वो भी है, क्वेरिंग भी है और माइनिंग भी है। ये स्टोन कटिंग दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में, स्टोन कटिंग। तो ये भी क्वेरिंग में आ गया। जो ऊपर से दिखाई दे रहा है ना, वो क्वेरिंग कहलाता है। और एक होता है जिसको शैफ्ट माइनिंग कहते हैं। शैफ्ट
तो एक शाफ्ट माइनिंग का तुमको हम ये दिखाते हैं। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है ना कि एकदम वर्टिकली ड्रिलिंग करते करते एकदम इंटीरियर में जाया जाता है, एक उसमें लिफ्ट लगा दिया जाता है, ऐसे जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, देखो। मैम चेंज नहीं हुआ। मैम कोडिंग वाला डिस्प्ले हो रहा है। ओह अच्छा, नहीं हुआ है। अब डिस्प्ले हो रहा है। यस मैम हो गया। हो रहा है हो डिस्प्ले? रहा है मैम। अच्छा यस मैम। हाँ, तो ये देखो ये जो है ना, ये डायग्राम से ये दिखाया जा रहा है कैसे सीधा एकदम वर्टिकली इंटीरियर में एंटर होता है। हाँ, ये इसको क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। तो ये यहाँ अंदर तक आ गए। अब इसके बाद यहाँ से इस तरफ हॉरिजॉन्टली जिधर भी जरूरत है उधर माइनिंग के होता है, इधर से यहाँ तक आने के बाद, ठीक है ना। तो जब बहुत डेप्थ में माइनिंग करनी होती है तो शाफ्ट माइनिंग यूज होता है, और नहीं तो क्या होता है, क्वेरिंग से ही काम चलता है। तो इसमें लिफ्ट से वर्टिकली बहुत अंदर जाएंगे और फिर हर डायरेक्शन में यहीं से माइनिंग होता रहता है। तो कोल माइनिंग ऐसा इंडिया में बहुत है। मैम अंडरग्राउंड मेट्रो ये सब में यही यूज होता है। हाँ, वो सब तो यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत सारा ये है, मेथड्स है उसमें। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि 4 वैरायटीज जो कोल के हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 एंथ्रासाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिग्नाइट एंड नंबर 4 पीट। देख लिए, पीट सबसे कम समय में तैयार हुआ है और ये स्वैम्प एरिया में, मतलब लो लाइंग लैंड में फॉरेस्ट के डिके होने से तैयार हुआ है, और इसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है और हीट कम डिस्चार्ज होता है। और बुक में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं माइनिंग के, ये देखो। हाँ, ये सब शाफ्ट माइनिंग ही है, ये दोनों पिक्चर भी शाफ्ट माइनिंग के ही हैं, जिससे अंदर एंटर किया जाता है और ये सीलिंग को सपोर्ट दिया जाता है इस तरह से, और यही सारे शाफ्ट के ऊपरी भाग हैं जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, शाफ्ट माइनिंग। तो माइनिंग और क्वेरिंग दोनों ही मेथड काम करता है। तो ये मैप दिखाने के पहले हम तुमको आज वो लेसन कंप्लीट कर लेते हैं कोल का, क्योंकि अब टाइम ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देखो कोल कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो कोल के मेनली ना 2 रीजन्स हैं। टाइम पीरियड के हिसाब से कोल को 2 पीरियड में, 2 जियोलॉजिकल पीरियड में बांटा गया है। एक को क्या कहते हैं, गोंडवाना कोल कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, टर्शरी कोल कहते हैं। गोंडवाना कोल एंड टर्शरी कोल। यहाँ लास्ट पैराग्राफ में देखो, in India, coal occurs in rock series of 2 main geological ages, namely Gondwana, a little over 200 million years old in age, and in tertiary deposit, which are only about 55 million years old. Which one is older? The Gondwana coal is older. है ना, गोंडवाना लैंड का नाम सुने हो ना? जब यस मैम। सारे कॉन्टिनेंट्स जॉइंट थे तो उनको पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया जब 2 भागों में, कारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। हाँ, तो गोंडवाना लैंड तो बहुत पुराना लैंड है, एकदम एंशियंट लैंड है। तो एंशियंट लैंड, गोंडवाना लैंड में जो कोल मिलता है ना, वो वही ज्यादा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जो डेक्कन प्लेटो है या पूरा प्लेटो रीजन जो है, छोटा नागपुर प्लेटो से लेके, मतलब सेंट्रल हाईलैंड से लेके डेक्कन प्लेटो तक, वो सब का सब गोंडवाना कोल डिपॉजिट से भरा हुआ है। तो गोंडवाना कोल 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और ये है 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जिसको टर्शरी कोल कहते हैं। और गोंडवाना कोल को ही मेटलर्जिकल कोल कहते हैं, जो बिटुमिनस कोल है। तो यह मिलता कहाँ है? तो बहुत सारे इंडिया के रिवर वैली हैं, वहीं पे झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे रिवर वैलीज हैं। तो झारखंड वेस्ट बंगाल का जो रिवर वैली है वो है दामोदर वैली, याद रहेगा, दामोदर वैली। आर यू लिसनिंग? यस यस मैम। यस मैम। दामोदर वैली में 2 स्टेट आ गए,
एक वेस्ट बंगाल और एक झारखंड, दोनों का ज्वाइनिंग एरिया हो गया। और माइंस के क्या क्या नाम है? झरिया, रानीगंज। देखो झरिया इसमें से उसमें झारखंड में आ गया और रानीगंज वेस्ट बंगाल में आ गया। बोकारो भी झारखंड में। आर इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स द गोदावरी महानदी, सोन एंड वर्धा वैली। देखो एक हो गया गोदावरी वैली, तो गोदावरी वैली आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, जिसमें तुम मैप में देखोगे ना तो सिंगरेनी कोल फील्ड है जो कि गोदावरी वैली में है। कौन सा कोल फील्ड? सिंगरेनी। और उसके बाद महानदी, महानदी तो उड़ीसा में है, तो महानदी उड़ीसा का महानदी वैली जो है उसमें भी बहुत कोल डिपॉजिट है, और इसका एग्जांपल है तालचर कोल माइंस, ये भी हम मैप में दिखाएंगे। फिर सोन है ना, इंडिया के ये बिहार के सदर्न पार्ट में सोन, और वर्धा वैली। तो वर्धा वैली जो है वे महाराष्ट्र में पड़ जाता है, महाराष्ट्र में। वर्धा भी रिवर का ही नाम है, तो वर्धा रिवर वैली is in Maharashtra and it has also bituminous coal deposit। ठीक है, तो अभी क्या क्या नाम पढ़े हम गोंडवाना कोल में, इसी को रिपीट कर लेते हैं। गोंडवाना कोल में कितने नाम पढ़े? पहला नाम हम पढ़े वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में, जो कि दामोदर रिवर वैली कहलाता है। उसके एग्जाम्पल हो गए झरिया, रानीगंज, बोकारो। और गोदावरी रिवर वैली जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, इसमें मेन कोल फील्ड हो गया सिंगरेनी कोल फील्ड। सिंगरेनी तुम अभी मैप में देखोगे सब दिखेगा। फिर महानदी उड़ीसा में हो गया, तो महानदी वैली में तालचर कोल फील्ड का बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर सोन साउथ बिहार में और नदर्न पार्ट ऑफ एमपी वाला एरिया हो गया, और यही एडजॉइनिंग एरिया जो महाराष्ट्र का है वहीं पर वो है ईस्टर्न महाराष्ट्र में, मतलब वो है वर्धा वैली। तो वर्धा रिवर वैली में भी कोल डिपॉजिट है। अब टर्शरी कोल कहाँ पे है? दूसरा दो जियोलॉजिकल टाइप्स हम लोग पढ़े ना, गोंडवाना कोल है, टर्शरी कोल। तो गोंडवाना कोल के बारे में ये सब हो गया। अब टर्शरी कोल, तो टर्शरी कोल जो है ना वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है, थोड़ा बहुत कश्मीर में भी है। तो रिमेम्बर कोल इज अ बल्की मटेरियल, बल्की मतलब हेवी, हेवी भी है और वॉल्यूम में भी ज्यादा है। तो कोल इज अ बल्की मटेरियल विच लूजेस वेट इन यूज एज इट इज रिड्यूस्ड एज एश। तो कोल जल के कम वेट का हो जाता है जलने के बाद, तो इसलिए क्या करते हैं कि सारे इंडस्ट्रीज को कोल के पास ही लोकेट करते हैं ताकि कोल के ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्च नहीं लगे। Hence, heavy industries and thermal power stations are located on or near coal deposits। ठीक है, तो आज हम लोग का इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में ना हम इसका मैप को भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तुम लोग को ना आयरन ओर का मैप और ये कोल डिपॉजिट का मैप, ये दोनों मैप बहुत अच्छे से कर लेना है। आर यू लिसनिंग?